So today we are going to start sowing, and sowing it is basically, or will you explain first? Sir, Yeah. can you repeat? About sowing, will you explain first, or I will start from the beginning? Sir, in sowing we put seeds in the soil. Sir, so That's only by different methods. by different methods. That's only. Anything else? Anything extra? Anyone want to add? Sir, they must be sown at the right depth and right time also. Right depth and right time. Very good. And anything extra? Anyone want to add? Yes, sir, those seeds should be good quality. Once again, Sir, the seeds should be at the good quality. good quality. Sir, and the spaces between the two seeds should be uniform. That is the main point. That we call as there should be equally distribution of seeds in the field. Are you getting my point? If there is too Yes. much density, too much dense among the, or we can say a little inter seed space, that will be a competition between the seeds between the plants for their nutrients, and they will be deprived from their normal growth. Means nutrient competition होएगा, तो फिर न्यूट्रिएंट कमी होने की वजह से प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा, तो फिर उसकी अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगी। जब डेवलपमेंट नहीं होगा, फिर वो अच्छा आपको बेटर रिजल्ट नहीं दे पाएगा। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। So basically in agriculture, this is a main step, or it's a very very important step towards agriculture, towards whatever you are farming. Most important, आप चाहे कितना भी खेत एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कितना भी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट यूज कर लो, इस अगर जो मेन चीज अगर वही आप अगर फील्ड पे नहीं दिए और प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाए, तो देर इज नो चांस ऑफ गेटिंग एनी काइंड ऑफ फील्ड क्रॉप या क्रॉप फील्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes. So write down the first of all definition. The process of putting the seeds into the soil is called sowing. In next, you can write as by writing hashtag that equal distribution of seeds in the field at equal distance and only to certain depth. Are you able to understand? Yes, sir. मीन्स एक पार्टिकुलर लिमिट तक की डेप्थ तक हम डालेंगे, बाहर भी देंगे तो दिक्कत है, चिड़िया वगैरह खा जाएगी, या फिर ज्यादा नीचे भी देंगे तो प्लांट वहां से, क्योंकि इनिशियली वो काफी वीक होता है, जो उनके प्लांट के प्लांटिंग होती है, वो सीड की जो प्लांटिंग जो प्लांटलेट होती है, सीड के जो फीडलेट होती है, जो इनिशियल लीफ होती है, वो काफी वीक होती है और वो सॉइल को चीरता हुआ नहीं निकल पाएगा। दैट्स वाई प्रॉपर डेप्थ नहीं होना ठीक है। In next, you can write then what are the methods that you can take? Sir, sowing by hand.
हाँ जी. So what I am saying is that anyone was saying something. Sir, you are asking different types of sowing methods, right? हाँ. So will you explain? Sir, I will say one. Sir, sowing by So hand. first of all, tell me, before saying what should you do? Before sowing, sir. Before saying what should Selection you of do with seeds? seed. Sir, what? Before sowing, what should you do? What you will do with the seeds? So we will select the good quality of Good quality of seeds. Students, wait a minute, okay? Okay. So we are discussing that before sowing, someone is saying that we should take good quality of seeds. And what about else you can do? So can you repeat? What, as you say, you will take good quality seeds. That's fine. In addition to that, will you do anything? Sir, we will dig the soil. Soil. Sir, we will prepare the soil. No, So no, 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 no. clean it. I am saying that with seed, what you will you do? तो करने से पहले आप सीड के साथ या सीड के लिए क्या करोगे? So we can clean the seeds. Basically you will select good quality seeds and Sir? and what else you can do? Sir, can we spray pesticides? In some seeds we will mix some chemicals so that do not any other insect do not eat them or any microbes do not attack them. So for this we will attack some kind of chemicals, some kind of poison that will kill the other microbes. Are you getting my point? Yes, sir. Yes. If the seeds are of certain if they are very little in amount, so we will eat some kind of soil or some kind of sand with that, so that when there is sowing, when the sowing method is going on, then there is equal distribution can occur. Are you getting my point? Sir, And for selecting good seeds, what will you do? You will have to put the seeds in water, and the whatever the drier seeds, they will float, and we can select we can filter them out, and whatever the bottom part the seeds are available, we will take them and we will dry up. अच्छा, सीड्स को चेक करने के लिए कि सीड अच्छे क्वालिटी का है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो आपने बनाना का वो देखा होगा ना, जो उसकी स्टेम होती है, यस और नो, तो स्टेम के अंदर ना वाटर होते हैं, जो उसका मेन पार्ट लंबी सी पार्ट होती है ना, वो अलग अलग लेयर बाय लेयर ज्वाइंटेड होती है, उनको हम क्या करते हैं ना कि उनको कट करके उसके अंदर काफी नमी होती है, मीन्स ह्यूमिडिटी होती है, वाटर होती है, उसके अंदर कुछ 5 6 7 8 सीड्स को डाल देते हैं और देखते हैं कि सारे के सारे सीड्स इक्वली ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो चेक करने के लिए कि वेदर द सीड्स यू हैव सेलेक्टेड आर एट द बेस्ट क्वालिटी और नॉट, आर दे आर गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स और नॉट. इफ देन, हाँ सर. सर हम लोग ये भी कर सकते हैं ना कि एक मटके में हम लोग मटके या कोई भी यूटेंसिल लेके उसमें पानी भर लेंगे और थोड़ा सा सीड उसमें डालेंगे, तो जो सीड्स ऊपर आ जाएंगे वो डैमेज सीड्स रहेंगे और जो that is what I have said just now, that is what I have said कि जो ऊपर फ्लोट करेगा वो बेकार सीड्स है, उनको हटा देंगे, बाकी जो नीचे बॉटम में सेटल हो जाएगा वो आपके अच्छे सीड्स हैं, फिर उनको हम सेलेक्ट करके क्या करेंगे, शो करेंगे. Are you getting my point? अच्छा, जब सीड शो करते हैं समवॉट क्या करते हैं, उसको ड्राई नहीं रखते हैं, उनको समवॉट वेट रखते हैं, इससे क्या होगा ना कि वो इजीली ग्रो, मॉइस्चर मिल जाएगा और इजीली वो ग्रो कर सकता है. Are you getting my point? सर मुझे एक डाउट है कि आपने बोला कि सोइंग से पहले हम सीड्स पे कुछ
पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं पॉइजन टाइप के, तो वो तो हम प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स वाले स्टेप प्रोसेस में कर रहे हैं ना। नहीं वो ठीक है, प्रोटेक्टिंग के लिए हम ठीक है, वीडीसाइड से अलग चीज है, वो वीड्स के लिए है, समझ रहे हैं। जब हम Okay, स्प्रे sir. करेंगे, जब हम स्प्रे नहीं करते, उनके साथ कुछ मिलाते हैं, कुछ केमिकल, ताकि जब वो सॉइल पे जाए ना, क्योंकि सॉइल पे माइक्रोब्स अवेलेबल है, माइक्रोब्स क्या बहुत सारे इंसेक्ट्स भी अवेलेबल है, तो उनको ना खाए, इसलिए हम लोग मिक्स करते हैं। जरूरी नहीं कि सारों में मिलाया जाता हो, जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ पाउडर्स मिलाते हैं ताकि उसमें कोई इंसेक्ट वगैरह ना लगे या एंट्स वगैरह ना आए, कुछ पाउडर्स Okay, मिलाते sir. हैं, कुछ केमिकल्स मिलाते हैं। क्लियर है? तो राइट ऑन Yes. नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर सोइंग good quality or seeded best quality. Good quality seeds are selected. Clear? Yes. Selected seeds should be selected seeds should be clean, healthy, and good variety. Clear? Yes. Healthy and good variety. अच्छा, there is a term we can call it as healthy seeds or the field of high yield variety, HYV. Anyone? HYV क्या होता है? high yielding. Moving to next. Everyone done? Yes, sir. Yes. Sir, can you turn to the back side? Do it fast. Yes, sir. Done. Yes, sir. Done. I was saying that you can write as a star HYV. The better or the best seed or the good seed is HYV. Means high. We will select only those seeds which are of high yield variety. High yield variety. So how will you select the HYV seeds? Anyone? So before sowing means during the course of sowing, yeah, for sowing we will select the better seeds or the good seeds. Selection of seeds. Sir, is it necessary that the high yield variety seeds always are the healthy seeds are always high yield variety? Obviously, healthy person तो हमेशा healthy ही रहेगा ना. Okay. You Sir. cannot fight a weak person cannot fight with a healthy person. Similarly, the healthy seed HIV seeds are always healthy. That's why they are
मीन्स ऐसा सीड जो अच्छे वेराइटी मतलब कि ज्यादा यील्ड दे आपको ऑन प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. So write on the next point in this, good quality seeds are heavier than the damaged seeds as they are hollow. Yes or no? Yes, sir. Damaged seeds are hollow. And thus they are lighter. That's why so they float on water. Done? Yes, sir. Hello? Yes. Yes, sir. Everyone done? Yes, sir. Yes, sir. That seed that we have selected should be of HYV. Yes or no? Yes, sir. Seed should be of HYV. What does it mean? Sir, High yield variety. High yield variety. Free from insect. मीन्स ऑलरेडी उसके अंदर इंसेक्ट अवेलेबल है तो और तो उसके लिए बढ़िया हो गया कि आप ऑलरेडी इंसेक्ट के साथ वाली सीड्स को दे रहे हो, बाकी सीड्स को भी खत्म कर देगा। क्लियर? फ्री Yes. फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट। Done? Yes, sir. Should I move to next? Yes, sir. Yes, sir. So for sowing we have different methods. For sowing we have different methods. So write down the next topic, methods of sowing seeds. Methods of, acha, I have said that in few minutes ago I have said that we mix the seeds with soil or sand. ये पता कब करते हैं? जब हम हाथों से by hand we spread the seeds. We distribute the seeds by hand. हाथों से भी सोइंग होती है, do you know? Yes, sir. लाइक आपने बचपन में हाथ में से कुछ खाया होगा ना, वो मुंह में ऐसे डाल करके ऐसे फेंके, कभी खाया है बचपन में? Yes, sir. समवट मिक्सचर टाइप का जो समवट छोटे दाने टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो उसी तरीके से क्या करते हैं ना, हाथों में से फील्ड में फेंकते हैं, मतलब फैलाते हैं। उससे क्या होगा ना, आपके हाथ में जो प्रॉपर आपका जो पीस का साइज है उसके अंदर आएगा। अब सीड्स ऑलरेडी कम है, वो तो फिर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा।
तो आपको फैलाने में मुश्किल होगी। इसके लिए क्या करते हैं ना, कुछ सॉइल या सैंड मिक्स करते हैं ताकि आपके हैंड में वो पूरा, पहले उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर उसको फील्ड में फेंकते हैं। कोई दिक्कत? No, sir. सर Methods बट of अगर हैंड से करेंगे तो वो इरेगुलर होगा ना। यस सर। हैंड से करना ये लार्ज स्केल में नहीं है, छोटे मोटे मतलब एरिया के लिए। इफ यू हैव लार्ज फील्ड देन मशीन इज यूज। इन सर विलेज Seed drill. सर फिर भी जो सीड्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, कहीं ज्यादा कहीं कम। नो नो नहीं, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। इनिशियल टाइम वो ट्रेडिशन में था ना, ये पहले इनिशियली पहले हाथ से तो होती थी, या फिर जो सीड ड्रिल होती थी वो ट्रेडिशनल मेथड्स में होता था। जो लोग एक्सपीरियंस, वो सब कोई नहीं कर सकता है ना, आप और हम नहीं कर सकते। वो जो दोज पर्सन वी आर ऑलरेडी इन एक्सपीरियंस, who is one who is doing farming in last 20-30 years, last 40-50 years, वो ये सब काम करेगा ना, जो इसके एक्सपर्ट होते हैं। तो सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन सबके बस की बात नहीं है। यस और नो? Sir, अभी seed drill use हो. Nowadays we are using seed drills, but in village areas still they are using by hand. कभी आपके हाथ में ना, कभी कुछ मैं क्या बताऊं, कुछ छोटे से दाना या फिर बीड्स टाइप का आपके हाथ में हो ना, तो एक बार आप हाथ से फैला के देखना एक पार्टिकुलर तरीके से, दे विल फॉल ऑन इक्वल एंड एग्जैक्ट सेंटर सीएम, मतलब सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर इक्वल तो नहीं होगा, पर नियरली इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा वो। क्लियर? वो फेंकने का आइडिया होता है, फैलाने का आइडिया होता है। तो नेक्स्ट लिखेगा मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। क्लियर? यस सर। Writing the next, the first method is by hand. Sowing of seed by hand is called as broadcasting. वो न्यूज वाला ब्रॉडकास्टिंग नहीं। क्लियर? Sowing of seed by hand is known as broadcasting. In this, what we do, seeds are taken in hand. In this, seeds So are, what is the meaning of broad? ब्रॉड मीन्स हाथ में लेके हम जो फैलाते हैं ना, तो उसी सेंस पे हम लोग यहाँ बात करते हैं। Okay, sir. समझ में आ रही है ना? कास्टिंग का मतलब होता है कास्ट करना, जैसे आप न्यूज टेलीकास्ट होते हैं, न्यूज मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट करते हैं तो फैलाते हैं। जब हम हाथ से करते हैं ना, वहां से आया टर्म ब्रॉडकास्टिंग। क्लियर? Sir. हाँ, जैसे हम न्यूज टेलीकास्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग ना, वैसे जब हम सीड बाय हैंड करते हैं उनको बोलते हैं, उनका टर्म यूज किया गया है ब्रॉडकास्टिंग। इज इट क्लियर? Yes. Yes, In sir. this, seeds are taken in hand and spread them all over the field. इसका प्रॉब्लम क्या है ना, इसका प्रॉब्लम क्या तो बताइए। जो सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे वो प्रॉपर, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन सर नहीं होगा। सर वो यूनिफॉर्म डेप्थ पर भी नहीं होगा। हाँ, जो डेप्थ में होगा तो होगा, लेकिन ये एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। दूसरी बात, इसमें वेस्टेज ज्यादा होगी, मतलब फील्ड से बाहर भी गिरेगा। जो मान लो दिस इज योर लैंड, तो ड्यूरिंग जब आप इन एरियाज पे, मतलब पता कैसे कैसे करते हैं, मान लो एक इंडिविजुअल पर्सन यहाँ पे खड़ा है, अपने हाथों से वो पहले इस एरिया में देगा, इधर से फेंकते 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 फेंकते, जब इधर वो स्प्रेड करेगा ना, तो कुछ इधर भी गिरेगा। या सुन लो, अरे बोलो तो। Yes, sir. फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ये इधर फेंकेगा, इधर फेंकते 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 ऐसे आएगा, फिर इधर वापस जाएगा, फिर इधर फेंकेगा, ऐसे करके ऐसे करेगा, फिर इधर करेगा, इससे वापस आएगा, इस तरीके से चलते रहते हैं, मतलब कई राउंड लगाते हैं वो। क्लियर है? तो इस दौरान कुछ बाहर भी चला जाएगा, तो सीड्स का वेस्टेज भी होगा। या सुन लो,
अरे बोलो, Yes. Yes. इसका वेस्टेज भी होगा, इस तरीके से बाय हैंड करते हैं। दूसरी बात, ये एग्जैक्टली यूनिफॉर्म नहीं हो पाती एज जो सीड ड्रिल के थ्रू हो पाती है, लेकिन काम चलने के लायक हो जाता है। क्लियर? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसमें लिखिएगा अ लॉट ऑफ वेस्टेज as there is no uniform spacing or proper depth. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Any doubts and difficulties? No, sir. No, sir. Moving to next, then Yes, sir. write down the second method, that is by drilling. Yes or no? Yes. In this we use driller. जैसे आपने देखा ना मशीन ड्रिलर जो वाल को ड्रिल करता है, तो वैसे कुछ इनमें क्या होता है कि कुछ इक्विपमेंट इसमें सेट की हुई होती है जो प्रॉपर डेप्थ में क्या करता है, सीड्स को डालता है। ऐसे ही पूरा पार्टिकुलर पूरा फील्ड में ये फैलाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. और एक प्रॉपर डेप्थ तक ही गिर पाता है, फिर वो सॉइल वहां से कवर अप हो जाती है। Sir, it is कोई a दिक्कत? machine. once again, Sir, is it a machine? या इसमें आपके पास मशीन क्या, एक ट्रेडिशनल टूल भी हो सकता है, ये जो ट्रैक्टर के साथ भी आ सकता है। मशीन क्या है, एक कुछ टाइप का इक्विपमेंट होती है, लाइक देयर इज व्हाट वी कैन से फनेल शेप स्ट्रक्चर, जहाँ पर हम यहाँ पे सीट को करते हैं और ये इस तरीके से पूरा, मान लो ये पूरा आपका वो क्या बोलते हैं, लाइक वी हैव व्हाट वी कैन से फॉर टिलिंग एज वी हैव यूज आयरन पार्ट्स ना, तो वैसे कुछ ऐसे फैले हुए होते, कुछ पार्ट्स होते हैं, फिर ये इस तरीके से बटे हुए होते हैं और एक पार्टिकुलर इस तरीके से इसके साथ गिरता रहता है और सीड्स हम यहाँ पे डालते हैं। यहाँ से जाएगा तो इधर इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, कुछ इधर गिरेगा, कुछ इधर गिरेगा, कुछ इधर गिरेगा, इस तरीके से गिरता रहेगा। यस और नो? एक पार्टिकुलर Sir? स्पीड के साथ ही गिरेगा। हाँ सर। सर ये सीड ड्रिल ही है क्या? कौन सा? ये जो आपने आपके डायग्राम model- बनाया। हाँ, कुछ सीड ड्रिल ऐसा ही होता है। समझ में आ रही है? मैं आपको दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। Sir, what is the difference between the seed drill and this drill? कौन सा ड्रिल? Sir, अरे is बोलो तो there कौन सा? बोलिए बोलिए। Sir, is there any difference in the seed drill and this drill? वही आप समझ रहे हैं। ड्रिलिंग का मतलब होता है छेद करना। एक पार्ट, जैसे आपने आपके घर में कभी कोई इलेक्ट्रिशियन आया होगा तो वो क्या करता है ना, वो स्क्रू वगैरह को ड्रिल करके डालता है। तो ड्रिल मीन्स क्या बोलते हैं उसको, मतलब कि कैसे आप जैसे कील वगैरह डालते हैं ना वाल पे, नेल Yes, sir. वगैरह, दैट इज सम काइंड ऑफ ड्रिलिंग। तो मशीन के थ्रू डालने से वो इजीली चला जाता है, उसमें स्क्रू लगता है। यस और नो? मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिखना चाहिए इसमें। पहले के जमाने में क्या होता था ना, कुछ इस तरीके से दिखा होता था। ये है ट्रेडिशनल वाला मेथड, पहले ऐसा होता था। आर यू एबल टू सी इट? Yes, sir. Yes, sir. नाउ व्हाट आई एम टॉकिंग इज लाइक इस तरीके से, ये कुछ व्हील के सहारे से गिरता है। ये अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। ये विलेज एरिया में नहीं होता, ये अर्बन एरिया पे ही होता है, जो मतलब कि जो लार्ज है, लाइक पंजाब है, हरियाणा है, जो लार्ज स्केल में यहाँ पे खेती होती है। समझ में आ रही है? जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं
जिनके पास एक 100 एकड़ 200 एकड़ का लैंड होता है, वो उनमें ये सब काम यूज किया जाता है। बात समझ में आ रही है? इन विलेज एरियाज, इन रूरल एरियाज स्टिल नाउ दे आर डूइंग बाय हैंड। सर इसमें सीड निकलता कहाँ से है सो करने के लिए? आपको कुछ पतली पतली पाइप नहीं दिख रहा है यहाँ से, वाइट समवॉट लाइट ब्लैक? यस सर दिख रहा है। तो इसकी यहाँ जो दिख रहा है ना, यहाँ ऊपर में इसके सीड्स को रखते हैं हम, यहाँ से ऊपर में सीड्स को रखते हैं, और नीचे जो पाइप दिख रहा है, इस पाइप के सहारे से जो आपको लास्ट में नोकीले पार्ट दिख रहा है वहीं पे गिरते हैं ये। सर ऊपर डब्बा भी है क्या? हाँ, एक कंटेनर है, कंटेनर में सीड रखते हैं। और ये मशीन 1 रुपये 2 रुपये की नहीं आती, लाखों में आती है। अराउंड 4 लाख 3 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख इस तरीके से आती है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes. तो ये सारे ड्रिल्स ऐसे ही आता है। और कुछ ये भी है आपके पास। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. इस तरीके से बहुत सारे, फिर से दिखाऊं? दिखा? Yes, sir. सबको दिखा? यस सर। Yes. Yes. बाकी और देख रहे हैं ना? तो यू कैन गो टू द गूगल एंड टेल देम कि गूगल सब कुछ बताता है ना, एज यू हैव हर्ड दिस सेड एंड सी दिस कि गूगल तो सब कुछ बताएगा कब कहाँ मिलेगा। तो आस्क टू गूगल कि व्हाट इज सीड ड्रिल, या show me seed drill, they will the Google will show you. Clear? We are Yes, moving sir. to next. फिर सीड ड्रिल की चक्कर में ना फिर सारा ड्रिल निकल जाएगा अपना, ठीक है ना? तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मीन्स समवॉट छेद करके उसके अंदर, मतलब कि इसको पोर करके उसको गड्ढा करके डालना। क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज ड्रिलिंग। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes. Yes sir. हाँ, in this we use drillers. Drillers are used in this method. Drillers are used in this method. Clear? Yes, sir. In this we have traditional method. पहले फिर होता क्या था ना कि जो हम लोगों ने हो की बात किया था ना, हो HOE हो, वो कैसे हो वाला हो नहीं, HOE हो, उसमें क्या देयर इज फाइनल शेप स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से होता है और कुछ बीच में गैप होती है। मतलब लाइक यहाँ के बाद क्या, फाइनल के बाद एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है जहाँ से पार्टिकुलर डेप्थ के साथ वो सीड गिरती रहती है। बात समझ में आ रही है क्या? ये Yes. खासतौर से उसके लिए एप्लीकेबल है ना, जहाँ पर जो स्पेसिंग इक्वल स्पेसिंग किया जाता है, जैसे लाइक मेज हो गया, ब्रिंजल हो गया, नॉट ब्रिंजल, जैसे कि जिसमें हम लोग सीट लगाते हैं, एक मेज हो गया आपके पास, और किसमें सीट लगाते हैं? एनीवन? डायरेक्ट सीट वो किसमें करते हैं? एक तो मेज हो गया, दूसरा So, wheat. नो वीट तो डायरेक्ट हमको स्प्रे मतलब पूरा स्प्रेड किया जाता है। मेज की खेती ऐसे होती है ना, जैसे मान लो ये मेज की सीट है, इनके लिए वर्कर्स होते हैं, वो पार्टिकुलर डिस्टेंस के साथ एक पार्टिकुलर डेप्थ तक ही उनको करते हैं। क्लियर है? क्या आप बाद में देख सकते हैं कैसे की जाती है, ठीक है ना? तभी मैं आपको टाइम मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा, आज दिखाने लगा ना फिर सब यहाँ पे अटक जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव ट्रेडिशनल मेथड। In traditional method we will use traditional tool. ऐसा तो हो नहीं सकता कि ट्रेडिशनल मेथड है हम लोग यूज करेंगे मॉडर्न टूल्स। अरे बोलो ना, ऐसा मुमकिन है क्या? No, sir. हाँ, तो in this you can say, in this for sowing seed, in this for sowing seed,
in this आपने लिख लिया क्या? Yes. लिख Sir, लिया? this No, tradition. sir. ऐसे मैं लिखता हूँ, सीड्स आर, मतलब वो ऑलरेडी जो आपने लिखा वो सही, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी वो अंडरस्टैंड है कि हम उसी सोइंग की बात कर रहे हैं। सीड्स आर सोन एज they are kept in a container, या ऐसा लिखिए on a funnel shaped structure from where the seeds are passed through the funnel through pipe to the soil. Clear? Yes. And after that it will pass down through, it may be one pipe or more than one pipe. Clear? Yes, sir. 2 or 3 pipes having sharp end, and these ends place the seeds where it needs to be. कैसे? कुछ इस तरीके से ये फनेल हो गया, अरे है कि नहीं बोलो? Yes, sir. Yes, sir. सीड कुछ इस तरीके से ये फनेल फैल जाएगा, एक कुछ नीचे जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, और ये कुछ नोकीला होगा, यस और नो? Yes, sir. और यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा, यहाँ पे गिरेगा। कुछ बात समझ में आई? ये आपके सीड्स हो गए। चाहे आप एक जितना सीड्स मन से डाल लो, क्या फर्क पड़ता है। और यहाँ से ये सीड्स गिरेगा। अगर किसी को याद ना रहे तो आप ये डायग्राम बना सकते हो कि किस तरीके से सीड्स फैलेगा। ये ऑब्वियसली अंडरस्टूड है ना, जब नल से पानी गिरता है, पाइप से, टंकी से पानी गिरता है ना, पाइप थ्रू के अलग अलग घरों में, वैसे ये गिरता है। कोई दिक्कत है क्या? No, sir. No, sir. सब बहुत समझदार हो। बच्चों को थोड़ा सा आप उसको वैसे ना विजुअलाइज करने की कोशिश करो। इतना लिखा आप लोगों ने क्या? Yes. Yes, sir. हाँ, write down the next, that is in modern method we use seed drill. Sir, the sharp ends that we have in this traditional tool, they are used for piercing the soil for the right depth. या मतलब आपने डाउट पूछा तो मैं आपको बता ही देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज फील्ड, ठीक है, और यहाँ पर ये आपके मेरे पास एक इक्विपमेंट है, ठीक है। बाकी और सारे चीज है, ये आपका मान लो मैं वो ऑक्स वाला काम कर रहा हूँ, तो यहाँ से ये इसका पकड़ने का हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से गिरेगा। जब इसको यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ से जो सॉइल होगा, ये सर्टेन डेप्थ में क्या होगा, एक गैप क्रिएट होगी, उसी गैप क्रिएट होते जाएगा, यहाँ से सीड गिरते जाएगा, एक यहाँ गिरेगा, कुछ गिरेगा, ऐसे गिरता जाएगा। क्लियर? और इस तरीके से फिर बाद में इसको लेवलिंग कर दिया जाएगा और सीड कवर अप हो जाएगा, ठीक है। अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. Write down the next method, that is the seed drill. Write down the next method, that is the seed drill. In this, the seed drills, these are done with the help of modern methods. Yes or no? They are done by modern methods. In this, the seed drill, So tractors are also used. yeah, ट्रैक्टर से किया जाता है। The seed drill is used for sowing with the help of
tractors. Clear? Should I move to next? Yes, sir. Everyone done? Yes, sir. Yes, sir. Doriawa done? Yes, sir. हाँ, जैसे हम लोग पहले उसमें लिखा था कि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रॉपर डेप्थ तक नहीं जाएगा, इसमें जाएगा मीन्स यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. राइट दैट seeds are uniformly sown at proper distance, and depth. उसमें नहीं तो प्रॉपर डेप्थ थी ना प्रॉपर डिस्टेंस था। अरे बोलो, Yes. Yes, sir. एनी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज? Sir. Sir. प्रॉपर डेप्थ। क्लियर? इसमें नेक्स्ट स्टार आगे लिखेगा ना, इट इंश्योर्स that seeds are covered by soil after sowing. Clear? अरे बोलो। Yes. Sir, but how does seed drill help with the covering of soil? जैसे हमने अभी एक इक्विपमेंट देखा, तो कुछ को जैसे मान लो मैं नीचे वाला डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है ना? कुछ ऐसे डायग्राम था ये, Yes. इसके पीछे एक मेटलिक पार्ट होती है। क्या होती है? मेटलिक पार्ट होती है। जैसे ये आगे आगे जाएगा, ये पार्ट तो सॉइल पे भी लगेगा, तो जो एक्स्ट्रा जो सॉइल होंगी उनको क्या कर देगा? गड्ढे में गिरा देगा। यस और नो? और Yes, सॉइल sir. कवर हो जाएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट्स एंड डिफिकल्टीज? No, sir. No, sir. बहुत समझदार हो तुम लोग यार। हाँ जी, it ensures that seeds are covered by soil. कोई दिक्कत? ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों हम सीड्स को कवर करना क्यों जरूरी समझते हैं? Why it is So that necessary? birds can't eat it. Birds हाँ, cannot eat. आप जैसे छोटे छोटे चिड़िया आगे क्या कर जाएंगे? उन सारे दाना को चूक जाएंगे। कहावत है ना, क्या हिंदी में कहावत है, मुहावरा है। आप आई थिंक हिंदी ग्रामर में पढ़े होंगे ना मुहावरा के बारे में, पढ़ा है? हाँ। अब होत क्या लाभ जब चिड़िया चुग गई खेत, जब काम बिगड़ गया पछताने से क्या फायदा। हाँ कि ना? तो चिड़िया का दाना खा जाएगा तो आपको तो बचा ही नहीं, तो फिर आपका यील्ड प्रॉपर हो भी नहीं पाएगा। बात समझ में आई, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट में लिखिएगा, सोइंग बाय ट्रेडिशनल टूल या सीड ड्रिल। सोइंग बाय यूजिंग सीड ड्रिल, it saves time. Yes or no? Saves time Sir. and labor. Obviously जब लेबर कम लगेगा तो खर्च भी कम होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Sir, in the traditional tool, it also saves time and labor. ट्रेडिशन में कैसे होगा? Sir, traditional में तो और टाइम लगता है ना? हाँ, इसमें तो बहुत फास्ट ट्रैक्टर काम करेगा ना। उसमें तो डायरेक्ट वो बैल वगैरह से, ऑक्स वगैरह से काम किया जाता है, गाय या भैंस वगैरह से या ऊँट वगैरह से। ऊँट से भी खेती होती है, घोड़े से भी होती है,
गाय से भी होती है, बैल से भी होती है, गधों से भी होती है, घोड़ों से भी होती है। बात समझ में आई? Yes. Should I move to next? Yes, sir. Yes. Yes, sir. सोइंग का तीसरा मेथड है ट्रांसप्लांटेशन। नाउअडेज आपने सुना होगा हेयर ट्रांसप्लांट, जिनके सर पे बाल नहीं हो क्या करेंगे, हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे। तो हम लोग वो वाला ट्रांसप्लांट की बात नहीं कर रहे, पर मेथड कुछ वैसा ही है। ट्रांसप्लांट का मतलब क्या, प्लांटिंग का मतलब होता है, या प्लांटेशन का मतलब होता है प्लांटिंग ट्री, यस और नो, या प्लांटिंग प्लांट, या प्लांटिंग प्लांटलेट, या छोटे छोटे प्लांट या मिनी प्लांट बोल सकते हैं। ट्रांसप्लांटेशन, इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes. इसमें लिखिएगा, क्या लिखिएगा, जैसे पहला पॉइंट लिखिएगा, द प्रोसेस ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह हम इसको छोटे छोटे प्लांट सैपलिंग को ट्रांसफर करते हैं। इसका मैं एग्जांपल, द बेस्ट सुटेबल एग्जांपल विल बी ब्रिंजल की जो फार्मिंग होती है, कॉलीफ्लावर की जो फार्मिंग होती है, कैबेज की जो फार्मिंग होती है, टोमेटो की जो फार्मिंग होती है, चिली की जो फार्मिंग होती है, एंड सर राइस और ऑनियन की भी होती है ना? राइस की भी फार्मिंग जो होती है वो हम छोटे, अच्छा ये राइस में ना दो टाइप की होती है, एक वो जो हम डायरेक्टली प्लांट के सैपलिंग को दूसरे के लगाते हैं, एक में क्या होता है डायरेक्ट सीड शो करते हैं, कुछ ऐसा भी पैडी में होता है। और वीट में डायरेक्ट सीड शो करते हैं, वीट में हम प्लांट सैपलिंग नहीं लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? वीट डायरेक्टली फील्ड में शो किया जाता है, जैसे पैडी है, चिली है, टोमेटो है, पोटैटो डायरेक्ट फील्ड में लगाया जाता है। क्लियर? कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, मोस्टली जो वेजिटेबल्स आपको दिखते हैं वो हम, या ब्रिंजल का फील्ड है, ब्रिंजल की फार्मिंग, ये सब क्या करते हैं डायरेक्टली हम फील्ड पे एक पहले उसको शो करते हैं एक पार्टिकुलर साइज, मतलब लाइक वी कैन से अराउंड 5 to 6 इंच हाइट तक, या 5 to 6 7 इंच, या अराउंड 4 to 6 7 इंच तक हम उनको ग्रो होने देते हैं, ताकि वो घना होता है इनिशियली। फिर उसको वहां से अलग करके, वहां से उखाड़ करके जड़ समेत, ऐसा नहीं कि जड़ टूट जाए तो फिर प्लांट मर जाएगा, तो जड़ समेत उसको निकाल करके फिर हम नए फील्ड में, अलग फार्मिंग फील्ड में अलग तरीके से उनको एक पार्टिकुलर डिस्टेंस के साथ हम उनको लगाते हैं, फिर दोबारा उसमें अलग से फिर मेहनत की जाती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपको उसका भी क्या बोलते हैं ऑनलाइन टूर करवाऊंगा, ठीक है? अभी इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि वी सो द सीड्स इन नर्सरी, जो कि काफी डेंस होता है। अगर वहां पे उसको ग्रो होना छोड़ दिया जाए तो उसमें से एक भी सीड जो है वो प्रॉपरली ग्रो होकर के वो आपको फ्लावर या क्या आपको फ्रूट नहीं दे सकता, ठीक है? आप वहां को निकाल करके उखाड़ कर किसी अलग जगह पे लगाओगे, एक सर्टेन उसको स्पेस काफी ठीक ठाक स्पेस चाहिए होता है, ठीक है ना? अराउंड अगर मैं ब्रिंजल की फार्मिंग की बात करूं तो हर प्लांट के बीच में अराउंड ये 12 इंच की जो इसके लिए इतनी गैप तो होती ही होती है हर प्लांट के बीच में। जो प्लांट बड़ा होता है तो वो एटलीस्ट इतना तो फैलता ही है। क्लियर है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। इसमें लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, इसलिए है ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और उन छोटे छोटे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, सीडलिंग्स बोलते हैं। सीडलिंग फ्रॉम नर्सरी। सर प्लांट सैप्स भी बोलते हैं ना? हाँ, प्लांट सैपलिंग बोलते हैं, ठीक है? फ्रॉम नर्सरी टू द फार्मिंग या रेगुलर फील्ड, फार्मिंग या रेगुलर फील्ड। सर हम उसे मेन फील्ड भी बोल सकते हैं। क्या? सर हम उसे मेन फील्ड भी बोल सकते हैं ना? once again, सर हम ये रेगुलर फील्ड को हम मतलब कि मेन फील्ड भी बोल सकते हैं ना? हाँ मेन फील्ड या रेगुलर फील्ड या फार्मिंग फील्ड, या जिस पे आप फार्मिंग खेती कर रहे हो, इज कॉल्ड सो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड?
सर तो फिर जिस फील्ड से निकाले उस फील्ड का क्या होगा? उसमें आप वहां पे भी तुरंत कर सकते हैं। वहां फिर हम किसी नए नए अच्छा ऐसा होता है ना कि ब्रिंजल या फिर जो हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं वो आपको 12 मंथ व्हाट कैन से जनवरी से लेकर दिसंबर तक मिलता है ना। आप एक बार फार्मिंग कर दी तो फिर वो शायद क्योंकि वो एक ब्रिंजल के जो प्लांट है वो पार्टिकुलर टाइम तक ही आपको ब्रिंजल देगा, उसके बाद फिर उसको काट के फेंक देना पड़ता है। दैट इज ऑफ नो यूज। क्लियर। अब उसके बाद जो आपको वेजिटेबल चाहिए यूनिट वेजिटेबल, तो वेजिटेबल कहाँ से आएगा? तो वो नेक्स्ट सेट ऑफ प्लांटिंग के लिए क्या करते हैं वो नर्सरी में फिर से एक फील्ड ही ऐसा होता है जो पार्टिकुलर नर्सरी के लिए किया जाता है, जो प्लांट सैपलिंग के लिए बनाने के लिए किया है। जो होता है ना फार्म हाउस जिनके बड़े बड़े होते हैं, जो बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, मैं कभी टाइम मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। Sir, हाँ सर। sir, if is there any benefit if we do transplantation before the growing them directly in the main field? Once again. Sir, are there any benefits if we do the transplantation before the main field that we grow? Not getting. Not able to understand. Sir, are there any benefits if we do transplantation before growing in the main field? मतलब एक जगह ऐसा कर सकते हैं ना, देखो जरूरी नहीं कि अब जो प्रोफेशनल फार्मर्स हैं जो लार्ज स्केल में करते हैं, कॉमर्शियल फार्मर्स, वो अपना नर्सरी खुद बनाते हैं, वो सब खुद करते हैं। आप अपने शौक के तौर पर अपने घर पे एक पॉट पे ग्रो करा सकते हैं, एक प्लांट के सैपलिंग को लाकर ग्रो करा सकते हैं। आपके घर में छोटे छोटे बैगन आप या फिर ब्रिंजल या टोमेटो आपको दिखेगा, मिर्ची दिखेगा, चिली दिखेगा, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप मेल फील्ड पे लगाओ। हाँ, जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं एग्रीकल्चर की ना, तो हम मेन फील्ड पे जो करेंगे अपने घर पे लेकर जो ना इतने प्लांट लगाएंगे। जो लार्ज स्केल में फार्मर्स होते हैं, जो लार्ज स्केल में काम करते हैं, तो उसकी अपनी नर्सरी होती है, ठीक है ना। तभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, ऑनलाइन टूर करवाऊंगा। अभी मुझे कलेक्ट सर नर्सरी और बोटेनिकल गार्डन में क्या डिफरेंस है? बॉटनिकल गार्डन क्या होता है ना कि उसमें एक नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब रहता है जहाँ पे आपको हर तरीके के प्लांट देखने को मिलेगा। नर्सरी क्या है ना कि उसमें टाइम टू टाइम इसको हम लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है ना, जहाँ पे ग्रीन पर्दा कवर डाल करके ग्रो कराया जाता है ताकि वो जो प्लांट की सैपलिंग से अच्छे से ग्रो कर किया जा सके, ठीक है। जहाँ पर हम सिर्फ कुछ प्लांट सैपलिंग को ही ग्रो करते हैं। बॉटनिकल गार्डन में बड़े बड़े प्लांट भी होते हैं, जो एक जंगल टाइप का होता है जिसके बारे में रिसर्च की जाती है, स्टडी की जाती है। और ये जो अपना नर्सरी होता है ये अपना फार्मिंग पर्पज के लिए होता है। बात समझ में आई? पैडी Yes, का हो sir. गया, Yes, sir. चिली हो गया, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, ब्रिंजल एक्सेट्रा। बाकी आप जो जानते हैं लिख सकते हैं। कोई मुझे ब्रिंजल का बायोलॉजिकल नेम बता सकता है क्या? Sir, can you repeat? बायोलॉजिकल नेम ऑफ ब्रिंजल। सोलेनम मेलोंजेना। आर यू एबल टू लर्न इट? नहीं पता पर मुझे पी का याद है। पी का तो बहुत आसान है, क्या है उसका नाम? व्हाट्सअप पी का नाम क्या है? पी का पाइसम सटाइवम ऐसा कुछ तो था ना। पी ऐसा का ही है, यही है। यही है। ये तो ये आसान है, खैर ठीक है, आपको आता है, अच्छी बात है। और बाकी बहुतों को हाँ ह्यूमन को होमो सैपियंस सर आपने बताया था ये थोड़े दिन पहले। बताया था। ओके गुड, आपको याद है। चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इतनी बात समझ में आएगा। ब्रिंजल का नाम होता है सोलेनम मेलोंजेना, पोटैटो का नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, बीट का नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। बात समझ में आई? सर आप लिख के दे सकते हैं क्या? कभी मैं दे दूंगा, ठीक है ना, अभी आपके कोर्स में नहीं है,
बस कभी बस दिमाग में रहे कभी अगर सामने दिख जाए तो आपको याद अपने को देगा, अच्छा हमने कभी सुना था, अच्छा कहीं तो सुना था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, हम लोग ट्रांसप्लांटेशन में हम लोग को प्लांट को नए फील्ड में ट्रांसफर करना क्यों पड़ता है? एनीवन? सर आप रिपीट कर सकते हैं? Sir, can you repeat? Why we need to transfer the plant saplings? हम लोग सारे प्लांट के सीड्स को डायरेक्टली फील्ड पे शो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? और ये जो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं क्यों करते हैं, वाई, ये बताइए। Sir, because when we grow in the nursery, after they are grown a bit, then the farmers put that crop in the main field. This helps the farmers to select the healthy kind of seeds. दिस इज द करेक्ट पॉइंट। इससे हम ना जो आपका हेल्दी सीड तो ग्रो करेगा, जो है ही नहीं तो ग्रो नहीं करेगा, तो वहां से हम हेल्दी प्लांट को सेलेक्ट कर सकते हैं। वेरी करेक्ट। में लिखिएगा ट्रांसप्लांटिंग द सीडलिंग, transplanting the seedlings is advantageous over direct transfer या direct sowing, as it helps us to select। इसके बाद क्या लिखा है? सीडलिंग के बाद सीडलिंग इज advantageous, advantage क्या है? advantageous over direct sowing, as it helps us to select the better and healthy seedling, better and healthy seedling for the cultivation of crops, for the cultivation of crop। क्लियर? सर अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम ट्रांसप्लांटेशन है ना? या सर आपने स्पेलिंग आई थिंक गलत लिखे है हेडिंग में। अच्छा, थैंक यू। ट्रांसप्लांटेशन, प्लांट क्या है ना, प्लांटेशन, और ट्रांसफर वाला तो बोलेंगे ट्रांसप्लांटेशन। थैंक यू फॉर करेक्शन। डन। हु इज नॉट इन द क्लास? इज इट सर हर्षा, सर नाउ आ गई, नाम लेते ही हाजिर होते ना, हाजिर हो। फिर हम नेक्स्ट। यस Yes, sir. हर्षा आपने लिख लिया? हर्षा सर मेरा नेटवर्क चला गया था, अभी आया। लिखा आपने? नहीं सर। क्विक पास। आप इतने के लिए ना इस पे छोड़ दो, फिर मैं आपके लिए बाद में आप लिख लेना, ठीक है? मैं आपका बाद में लिखने का टाइम दूंगा, ठीक है? तो मूविंग टू नेक्स्ट, राइट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, द seedlings are planted। स्वयं से हम ना उस तरीके से जो पार्टिकुलर डिस्टेंस हम दे नहीं पाएंगे, उसमें अपना बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना? और ये मुमकिन हो नहीं पाएगा कि हम इस तरीके से प्रॉपर डिस्टेंस दे सके। कम डिस्टेंस दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें ज्यादा डिस्टेंस चाहिए, अराउंड 12 इंच या 30 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा चाहिए, तो फिर ये नहीं हो पाता है, ठीक है ना? इसके लिए हमें प्लांट के सैपलिंग्स ही लगाने पड़ते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, प्लांट के सैपलिंग के लिए भी अलग मशीन आती है, समझ में आ रही है?
प्लांट के सैपलिंग्स को लगाने का भी नाउ डेज मशीन अवेलेबल है। क्लियर है, वो मॉडर्न डे मेथड्स में आ जाएगा। आर प्लांटेड एट द राइट स्पेसिंग। क्लियर, so that the plant may get यूनिफॉर्म, वही मैं बोला था ना कि न्यूट्रिएंट्स का क्या कंपटीशन में गेट यूनिफॉर्म सनलाइट, बोलिए वाटर एंड Yes. न्यूट्रिएंट्स and nutrients. Are you able to understand? Yes, sir. Yes, sir. Any doubts and difficulties? No, sir. नेक्स्ट लिखिएगा टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर